Okay, students, so today we are starting our next topic, Sir Syed Ahmad Khan. This is also taken from your section 1, and today I will try to finish section 1 by ending Sir Syed Ahmad Khan and languages of Pakistan, the last two topics that we have. So there's a question here that why did Sir Syed Ahmad Khan try to improve relation between British and Indian Muslims? So to answer this type of question, read it once again and try to understand what the examiner is asking you. The examiner is asking why. So the reason for improving a relation between British and Muslim by Sir Syed Ahmad Khan. So this means that we should think about the reasons, you should think about the factors that made him to improve relation between British and Muslims. यहाँ पे हम वो रीजन लिखेंगे क्यों उन्होंने रिलेशन इंप्रूव करना चाहा. तो रीजन नंबर 1 हमें यहाँ पर मतलब नजर आ रहा है कि because he believed that Muslims of India had remained backward and they should get the advantage of the British presence in India and they should get Western education, they should learn English language and they should get the better jobs because India mein they were conducting the ICS that was totally in English language, and to pass ICS to government jobs, the Indians, whether Muslims or Hindus, they should know the English language. So, learning English language and getting the best education could improve the condition of the Muslims in the Indian society. That's reason number 1. Reason 2 is about that he wanted to that Muslims of India should rely on British support for their political rights. And what was the political rights of the Muslim? They were always demanding, and that was right of separate electorate. इसको बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे और बाद में समझेंगे कि right of separate electorate क्या है. Because Muslims were in minority, Hindus were in majority. So the political rights of the Muslims were always undermined by the majority of the Muslims. Therefore, he believed that by improving relations, Muslims could get their political rights, especially the right of separate electorate. He also wanted to improve the bad feeling because British had very bad feeling towards Muslims. कैसे? कि ब्रिटिश मुसलमानों को ब्लेम करते थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि ब्रिटिश शुड हैव गुड फीलिंग टुवर्ड्स मुस्लिम्स and should improve their feelings and relations towards Muslims. And because British always had blamed Muslim responsible for the war, and they stopped funding Muslim schools and colleges. So for this purpose, in this way, he tried to remove the bad feelings of British about the Muslims. Okay. अब ये क्वेश्चन आ गया हाउ. ये क्वेश्चन था व्हाई. दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसमें वाई और हाउ का फर्क. तो वाई और हाउ का जो फर्क है वो वही है जो हमने आंसर में देना है. कि अगर फर्ज करें, अगर हमारे पास वाई का आंसर आ रहा है to be write down the reasons, और हाउ का आंसर है to be write in which way, how, किस तरह उन्होंने रिलेशन इंप्रूव किया. कैसे रिलेशन इंप्रूव किए, लेट्स सी दैट एक एक करके. तो सबसे पहले आपको पता है कि रिलेशन इंप्रूव करने में he wrote a number of books. तो आपने क्या करना है, आपने पहले बुक सर आप लिखें फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में भी बुक सर आप लिखाएं, और लास्ट पैराग्राफ में आपने इसके अलावा कुछ और लिखना.
तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपके पास बुक आ रही है, पहली बुक आ रही है, द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। मोहम्मदन्स का मतलब होता है मुसलमान। So Muslims who had been loyal to British. This book was written to show, and he listed many Muslims who had been loyal to British. Then he wrote a pamphlet, and the pamphlet was Essay on the Causes of Indian Revolt. ये जो essay लिखा था, this was about the reasons for the War of Independence. Because British always blamed Muslim responsible for the War of Independence. मगर इसमें he proved that Muslims should not be always blamed. It was partly British mistakes that caused the war. Okay. Second paragraph में we look at the another book, तबय्युनुल कलाम। कलाम का मतलब कलाम पाक, और कलाम पाक से मुराद होता है कि दो कलाम पाक की हम बात करते हैं, the Holy Quran and Bible. So he wanted to show similarity between Islam and Christianity, or Bible and the Holy Quran. इस बुक ने कन्विंस कर दिया मुसलमानों को या ब्रिटिश को और मुसलमानों को भी कि ब्रिटिश जो हैं they have also the same faith. वो भी अहले किताब है, उनके पास भी ये किताब है, वो भी दीन इब्राहिम से ताल्लुक। So they are not different from Muslims. Although they are not Muslims, but they also have similar faith as Muslims have. और फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी on the life of the Holy Prophet, because there was a book written on the life of the Holy Prophet by a British author based on misunderstanding, misconceptions. उन्होंने सारे misconception और misunderstanding को रिमूव किया और होली प्रॉफिट के इमेज को इम्प्रूव किया इन द आईज ऑफ ब्रिटिश, इन द आईज ऑफ। ओके, उसके बाद यहां पर लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़ते हैं कि he set up an organization known as British Indian Association. That was a single platform for cooperation between British and Muslim communities. इसके अलावा मुस्लिम यूज्ड टू कॉल ब्रिटिश एज नदारत। नदारत का मतलब होता है कि एक इंसल्टिंग वर्ड था, यानी स्ट्रेंजर, बट ही रीडिफाइंड दिस वर्ड। ही सेड दैट नो, ब्रिटिश से कहा कि नहीं, ये नदारत जो आप समझ रहे हैं इंसल्टिंग, ये इंसल्टिंग नहीं है। नदारत इज टेकन फ्रॉम अरबिक वर्ड नासिर, एंड नासिर मींस हेल्पर। सो मुस्लिम रिगार्ड ब्रिटिश एज देयर हेल्पर्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये हाउ वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। अब ये एक और वाई वाला क्वेश्चन आ रहा है, why did Sir Sayyid Khan develop his two nation theory? टू नेशन थ्योरी किस तरह डेवलप हुई? लेट्स सी। सबसे पहले जो पहला पॉइंट यहां पर आप याद करेंगे, आप लोग यहाँ पे साइड पे इसके लिख लें। जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या है? वो पहला पॉइंट है Hindus and Muslims were the two communities. ठीक है, मगर इसमें मुसलमान जो थे वो इकोनॉमिकली और एकेडमिकली और एजुकेशन में और इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। दे वर बैकवर्ड इन द इंडियन सोसाइटी। एंड तो सैयद खान ये बिलीव करते थे कि मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह इक्वल चांसेस इन एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज मुसलमान जो है एक सेपरेट कम्युनिटी है। तो टू नेशन थ्योरी एक अलग नेशन है, जैसे हिंदू एक नेशन है तो वो भी एक नेशन। तो ये दोनों नेशंस को एजुकेशन में इक्वल चांस मिलना चाहिए। सेकेंड बिलीफ ये था कि ही बिलीव के डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं रूल ऑफ पीपल
बाय पीपल फॉर पीपल। जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होके हुकूमत बनाते हैं, फिर वो दूसरे लोगों पे हुकूमत करते हैं। तो ये बिलीव करते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है। वाई? बिकॉज in case of elections, always majority Hindus would rule over minority of Muslims. मुस्लिम माइनॉरिटी में, वो मेजोरिटी में, तो हमेशा जो मेजोरिटी होगा वो माइनॉरिटी पे रूल करेगा। सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि मुसलमानों की भी एक अपनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। वो क्या है? वो ये है कि मुस्लिम शुड गेट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज दे आर सेपरेट नेशन। तो क्योंकि टू नेशन थ्योरी है, अलग नेशन है, सेपरेट नेशन, इसलिए मुसलमानों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, तो यहाँ पर आप लोगों ने साइड पे ये जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ आपने मतलब लिख देना है। पहला की पॉइंट जो था सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखना है कि इक्वल चांसेस फॉर मुस्लिम्स इन आईसीएस। दूसरा आपने लिखना है कि Muslims should get the right of separate electorate। और आखिर में आपने आपने लिखना है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ये क्या था? अच्छा, आपको पहले से पता है कि 1834 में, अगर हम 1834 पे चले जाएं तो कुछ चेंज हुआ था इंडिया में। क्या चेंज हुआ था? 1834 में पर्शियन और संस्कृत को रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश के साथ। मगर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो थी वो उस वक्त भी उर्दू थी, तो उर्दू को हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज किया। अब हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ये डिमांड कर रहे थे कि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए हिंदी इन प्लेस ऑफ उर्दू। That was considered as an attack on Muslims' religion because Muslim culture, sorry, Muslims' culture, because Muslims' official or cultural language was Urdu. So Sayyid Ahmed Khan protected Urdu and rejected the demand of Hindu extremists. यहां से हमारे पास एक चीज शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट में कौन सी चीजें इंक्लूड है? अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट वाज अलीगढ़ मूवमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट में आपके पास आ जाता है he tried to improve relation between British and Muslims, एक हो जाएगा one। he tried to encourage the Western education among the Muslims, ये दो हो जाएगा। he increased the political awareness among the Indian Muslims, ये तीन हो जाएगा। and he provided the religious services। बस ये आपका आखिरी मतलब टॉपिक है, ये आपका हो जाएगा। फिर लैंग्वेज भी हो जाएगी, बस इंशाल्लाह आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो इम्प्रूविंग रिलेशन जो हम वहां पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद है, बस आपने वो हाउ वाला आंसर लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इम्प्रूविंग रिलेशन में आपने ये बुक को अंडरलाइन करना है, ये चीजों को अंडरलाइन करें। 1860 ही रोड द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, इसको सबसे पहले आपने अंडरलाइन करना है। जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे आपने अंडरलाइन इन 80। ये ग्रीन से हो रहा है, ठीक है, इसको हाईलाइट करो। तो पहली बुक आ रही है आपके पास 1860 में, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। किसके बारे में था? इन दिस बुक ही listed many Muslims who had been loyal to the British, just to remove the misunderstandings of the British about the Muslims.
because they always regarded Muslims as their enemies. Here, he also wrote a pamphlet, उसका नाम था Essays on the Cause of Indian Revolt. And ये किसके बारे में था? मैं आपको बता चुका हूँ. This was freely circulated among the British officials and member of the parliament, and it proved that the War of Independence में Muslims should not only be blamed, but it was partly because of the British mistakes. He also redefined the word nadarat and defined it as helper, because Muslim used to call British as nadarat, and British considered it as an insulting word. Then he also wrote a book, Tabayyunul Kalam. Tabayyunul Kalam was about the similarity between Islam and Christianity, or Bible and the Holy Quran. He also wrote a book on the life of the Holy Prophet, because a book was written by a British author containing some misunderstanding about the life of the Holy Prophet. So in this way, try to improve relation, and British Indian Association भी आखिर में आप इसमें add करें. That was the organization set up by Sazim Khan to provide cooperation between British and Muslim communities. ये आपका हो गया एक पैराग्राफ, यानी 40 मार्क का क्वेश्चन. अगर मैं आपको यहाँ पे 40 मार्क का क्वेश्चन दिखाऊं, इसमें आपके पास एक पार्ट. ये the two-nation theory was Sazim Khan's main contribution to the development of Pakistan movement. जाहिर सी बात है, आपने two-nation theory से start कर. Versus Khan religious views. अब यहाँ पे religious views से start कर. Was the development of Western education. यहाँ promoting Western education से start कर. यानी आपने वही 3 points बताना है, जो 3 points मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा, अब encouraging Western education में सबसे पहले जो आपके पास चीज आ जाती है, वो एक बुक आ जाती है, और बुक का नाम है तहजीबुल अखलाक. ये एक उर्दू जर्नल था, जिसमें he tried to convince Muslim scholars that getting Western education is not against the teachings of Islam. He also set up schools for Muslim children at Muradabad and Ghazipur. ये next हो जाएगा. Scientific society इन्होंने बनाई थी. Scientific society, इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि पहले इन्होंने बनाई थी गाजीपुर में, but then it shifted to अलीगढ़. इस सोसाइटी का काम ये था कि to translate all scientific works from all over the world into Urdu, so Muslims of India could read and understand. फिर उन्होंने इस सोसाइटी ने एक मैगजीन भी पब्लिश किया, उसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट. ये ज़्यादातर उर्दू में पब्लिश हुआ. और जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जब हुई थी, तो उस दौर में ये मैगजीन के जो लिखने वाले जो हिंदू मेंबर्स थे, वो कहते थे दिस शुड बी पब्लिश इन हिंदी. और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो है वो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, अलीगढ़ में बना, या MAO स्कूल. ये कौन से में बना था? 1875. और फिर ये जो है ये कॉलेज बन गया, और आफ्टर डेथ ऑफ 1877 में ये कॉलेज बन गया. और आफ्टर द डेथ ऑफ सर अहमद खान इट बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. और ये यूनिवर्सिटी जो है, इट प्रोड्यूस कैपेबल लीडर्स
like Liaquat Ali Khan and Ayub Khan. अच्छा, फिर आ जाता है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये भी बना था, ये भी इसी में आ जाएगा। Was set up by Sasima Khan to upgrade the education standards of the Indian Muslims. और इसी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने आने वाले सालों में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा जी, अब हमें पास आ जाएगा इसका पार्ट, आखिरी पार्ट, लास्ट पैराग्राफ आ गया। और ये आपने इस तरतीब में नहीं लिखना, बल्कि आपने देखना है क्वेश्चन आपका कैसे लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में पॉलिटिकल अवेयरनेस पहले आ रहा है तो पहले पहले अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस पहले लिखना। Sasim Khan also worked for increasing political awareness among the Muslims of India. He considered, अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू मेजोरिटी पार्टी है, और मुसलमान से कहा कि नॉट टू ज्वाइन कांग्रेस, कांग्रेस को ज्वाइन ना करें, बिकॉज कांग्रेस इज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो इन्होंने फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम था यूनाइटेड पेट्रियोटिक अलायंस, और बाद में उसका नाम चेंज हो गया मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। अच्छा, ठीक है। यूनाइटेड पेट्रियोटिक अलायंस था पहले, इसका नाम हो गया मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। फिर उन्होंने वही बात जो हमने पहले बताई थी कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस Hindu majority would always rule over Muslims minority. And so for this, only one condition is possible, that if Muslims were given the right of separate electorate. He also asked British to give equal education opportunity for Hindu and Muslim. ये वही चीज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। And the greatest political, तो यही था टू नेशन थ्योरी, इसी की वजह से। और इसमें था हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ईयर इसका है 1867। इसमें क्या था कि some Hindu extremists demanded that Hindi should become the second official language in place of Urdu. और उन्होंने कहा था कि जो साइंटिफिक सोसाइटी मैगजीन जो पब्लिश कर रहा है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, वो भी हिंदी में होना चाहिए rather than उर्दू। So he strongly opposed these demands and stressed for the protection of Urdu, because Urdu is a cultural language, cultural identity of the Muslims of India. रिलीजियस सर्विस में आपने वही ऊपर से लिखना है, और वही चीजें लिखनी है जो 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 ऊपर लिखा हुआ है। और आपने बस उसमें ये करना है कि फॉर एग्जांपल ही रोड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, ये हम लोग वही ऊपर, वो जो ऊपर वाली चीजें उसको दोबारा लिख दें, ठीक है ना। बुक ऑन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। और फिर आपने बताना है तबीन कलाम, दैट वाज सिमिलर बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और तहजीबुल अखलाक, दैट वाज they try to convince them that Western education is not against the teaching of Islam. जी।
अब हमारा आखिरी टॉपिक रह गया लैंग्वेजेस। लैंग्वेज बहुत ही आसान। लैंग्वेजेस में सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाई वाज उर्दू चोजन एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपने तीन रीजन जो बतानी है वो ये बतानी है कि सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है, साइड पे आप लिखेंगे यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ पे साइड पे आप लिखेंगे इसमें कि पाकिस्तान एंड उर्दू। यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान एंड उर्दू। और दूसरा पॉइंट इसी में आपने लिखना है पाकिस्तान मूवमेंट एंड उर्दू। दूसरा आप लिखेंगे पाकिस्तान मूवमेंट एंड उर्दू। ये दो चीज आप लिखें। ये आपके पास दो चीजें होगी। अच्छा, अब जो है ये पाकिस्तान मूवमेंट एंड उर्दू हो गया और एक पाकिस्तान एंड उर्दू। जी, ये दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट के अंदर है। अब इसमें इसको अभी बताएंगे व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड कायद-ए-आज़म chose Urdu as a national language because he believed that Urdu could unite the different races in Pakistan. And during Pakistan movement, uh, there were two aims. One was the creation of Pakistan, and another was the protection of Urdu as a cultural identity of the Muslims of India. फिर दूसरा रीजन हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। यहाँ आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। Urdu has been one of the most developed language in Pakistan because many poets, many writers have have produced their work in Urdu language. और आखिर में आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ उर्दू। उर्दू is old and at the times of when the different army used to camp at one place and there were Arabs, Turkish, Persians, and they used to speak in Sanskrit language, a mix of all these languages. And then, so पहले उर्दू बना, यहीं से उर्दू बना। Urdu means camp language. They used to speak in mix of their own languages, mix of Arabic, Turkey, Persian, Sanskrit, and thus Urdu was developed. अब यहाँ पे आप आगे डेवलपमेंट ऑफ उर्दू ये क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन कैसा आता है। ये पहला क्वेश्चन तो वही है, व्हाई वाज उर्दू चोजन एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने वहीं से लिखा है। मगर ये जैसे क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे तीन लैंग्वेज पंजाबी, पश्तो, सिंधी, जो आपने तीन ऑर्डर में करना है।
यहाँ लिखा है पंजाबी हैज बीन प्रमोटेड मोर देन एनी अदर पाकिस्तान रीजनल रीजनल लैंग्वेज कौन सी होती है जिनमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो। यहाँ लिखा हुआ है हैज द प्रमोशन ऑफ उर्दू बीन मोर देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। तो पहले उर्दू आएगा, फिर 4 रीजनल लैंग्वेजेस आ जाएगी और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। सर ये आपने इस तरह आंसर दिया, बहुत ही आसान है, लैंग्वेज तो बहुत आसान है। अच्छा जी, अब आपने इसमें कुछ यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है कि मैंने हर लैंग्वेज में क्या क्या चीज लिखनी है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं भाई मैं जो है अच्छा, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम अगर अ, जी, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि उर्दू जो है, उर्दू हैज बीन डेवलप थ्रू मीडिया। मीडिया के थ्रू उर्दू डेवलप। मीडिया का मतलब होता है प्रिंट मीडिया। और तो आप ये पॉइंट्स लिखते हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाएगा। और प्रिंट मीडिया में आप अखबारों के नाम बता देंगे उर्दू, मतलब उर्दू जैसे डेली जंग, मशरिक, अखबार जहां, उर्दू डाइजेस्ट। और और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीटीवी सेंटर्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स और उर्दू फिल्म्स आ जाएंगी। फिर दूसरी कैटेगरी जो यहाँ पे आएगी वो आएगी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। You know that education, Urdu is compulsory in O levels and metric schools, and even Urdu is taught at university level. कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ये उर्दू डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो पीएचडी लेवल तक उर्दू पढ़ते हैं। तो एजुकेशन हो गया हमारे पास नंबर 2। नंबर 3 हमारे पास हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर की और जो प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है या पार्लियामेंट मेंबर्स की जो स्पीचेस होती हैं, दे आर इन उर्दू लैंग्वेज। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है, जो आपकी बहुत सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स भी है। ठीक है ना। और फिर उर्दू डिक्शनरी बोर्ड पे आ जाएगा, या आ जाएगा, मतलब इसमें आपने कुछ चीज़ें बस इस तरह खुद करके लिखनी है। तो मीडिया आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोइट्री गैदरिंग, मुशायरा हो जाएगा। इन सब चीज़ों ने प्रमोट किया है उर्दू लैंग्वेज। एजुकेशन ने प्रमोट किया है, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। ये सब चीज़ें आप मिक्स करके लिखो। यही चीज़ें आपने सिंधी के बारे में लिखना है, यही चीज़ें आपने पंजाबी और पश्तो और बलोची के बारे में लिखना है। तो सिंधी में भी ये करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने बताना है कि सिंधी लिटरेरी बोर्ड है, इट मीन सेटअप, ये ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। नूरी जाम तमाची और उमर मारवी ये फोक टेल्स हैं। फोक टेल्स मतलब वो जो पुरानी कहानियां होती हैं। बज़्म तालिबुल मौला, सरमस्त एकेडमी, सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट, जामशोर यूनिवर्सिटी, ये इट ऑफर्स। और आपका जो सिंधी लैंग्वेज जो सिंध बोर्ड में है, वो आपको वो वहाँ पे कंपलसरी है, वहाँ पे सिंधी मतलब कंपलसरी है। फिर इसी तरह मीडिया में अगर हम देखें, पीटीवी में देखें और रेडियो स्टेशन देखें सिंध में, और अगर हम ये सब चीज़ देखें तो ये प्राइवेट टीवी चैनल्स का नाम है। ये बस मैंने सबको अंडरलाइन किया हुआ है, केटीएन न्यूज, सिंध टीवी, प्राइवेट टीवी चैनल्स और आरसी, और ये शायरा, पोइट्री गैदरिंग। इसमें पंजाबी भी आप में भी आप ये कर दीजिए। तो आपने बस सिर्फ इसमें चीज़ों को जमा करके बस लिखना है। पंजाबी में भी आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाएगी, वो पंजाबी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर पीएचडी लेवल तक वहाँ पर स्टडीज होती है। मॉडर्न पंजाबी पोइट्स के नाम आपने बताना है, कि फिर उसके बाद बताना है पंजाबी न्यूज़पेपर्स हैं जैसे और पीटीवी है, और प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं पंजाबी में, जैसे अपना चैनल है, पंजाब टीवी है। और पंजाबी फोक टेल्स जैसे सोनी महिवाल। पंजाबी फिल्म्स आर वेरी पॉपुलर, स्टेज शोज आर वेरी पॉपुलर। इस तरह आपने करना। तो पश्तो को बता देते हैं, पश्तो भी इस तरह डेवलप थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक पोइट्री, मीडिया, एजुकेशन। पश्तो एकेडमी आ जाएगी, और ये पश्तो के पोइट्स हो गए, और ये न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, प्राइवेट टीवी चैनल्स हो गए। बलोची का भी इस तरह
मेरा ख्याल है ये बहुत इजी हो जाएगा। ये आप लोगों का एक लेक्चर हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सेक्शन 2 स्टार्ट